हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। हम लौट कर आए हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड करंट अफेयर्स। सो आज की डेट है 10th ऑफ जुलाई 2024 एंड लेट अस चेक कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज मैत्री, classical languages, quantum mission, EV cars, SEBI, Kenya, Japan and Philippines defense agreement. This is all what we are going to cover. Moving to the first news, Maitri 2024. So Maitri is an exercise. Maitri 2024 is an exercise between whom? India and Thailand. Okay, so this is between India and Thailand, between the Indian Army and Royal Thailand Army. Alright, so this is between the armies. This exercise is between armies of both the nations and it is conducted annually. And it is conducted annually. Alright. कुछ एक्सरसाइजेस होती है जिसे बायएनियली कवर किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, बट देर आर सर्टेन एक्सरसाइज दोज आर एनुअल. सो मैत्री इज वन ऑफ देम. दिस कुड बी आस्क्ड एज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ दिस एक्सरसाइज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 2006. तब से हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, बट इनिशियली द नेम वॉज TACAFE, that is Thailand India Cooperative Field Exercise. That is what it was known as. But in 2013 the name Maitri was given, which denotes Maitri का मतलब होता है friendship. So we wanted to honor the friendship between the two nations and hence the name was modified to Maitri. All right. कुछ और इसके बारे में हम समझते हैं. When you talk about exercises, तो हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि क्या क्या एक्सरसाइजेस, जैसे मैत्री में हमने समझा कि ये दोनों किसके बीच में है, थाईलैंड और इंडिया के आर्मीज के बीच में है. सो नाउ वी ऑल्सो हैव टू नो व्हाट अबाउट द अदर नेवल फोर्स एंड एयर फोर्स. सो वी विल डिस्कस दैट. ओके. सो फॉर air force between the two nations, the exercise that we have is Siam Bharat, and between the naval forces the exercise that we have. Okay, naval forces के बीच में जो होती है, one is Indo Thai Corpet. All right, one is Indo Thai Corpet. This is P. All right. The second one is exercise Ayutthaya. Okay, quite a different name, probably something it means in Thailand. So these are the exercises that you also have to remember that are conducted between both the countries. All right, this much data is sufficient. Moving on further, center set to tweak criteria for classical languages. So this is our topic. तो न्यूज़ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अभी एट प्रेजेंट किस किस के पास है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस. सो वी हैव 6 लैंग्वेजेस, दैट इज तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, Odia, and we also have Kannada. Alright, so these are the languages that are included in the classical language. अब कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड होगी नहीं होगी, कैसे हम डिसाइड करें? सो वी हैव अ क्राइटेरिया फॉर दैट. ओके. I'm sorry, I have to keep looking on my system today because I have tried to conduct this class thrice for the day. और 2 बार लाइट जा चुकी है, तीसरी बार में माइक ऑफ था, सो आई डिड नॉट नो दैट द क्लास वॉज एक्चुअली गोइंग ऑन एंड आई टुक द एंटायर क्लास.
and now this is the fourth time that I am conducting this same class. So this time I want to be sure that my system is working properly. So that is my constant attention is towards the screen, whether the class is running smoothly or not. All right. Okay. So these are the 6 classical languages that are included. Now how do we decide? So we have a criteria for this. ठीक है, criteria में हम क्या include करते हैं? We should have a history of the language for 1500 to 2000 years. ठीक है, कितना पुराना हमारा इतिहास होना चाहिए? 1500 से 2000 साल पुराना हमारा इतिहास होना चाहिए, और उसको बैक करने के लिए हमारे पास में कुछ टेक्स्ट या लिटरेचर उसका प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी ओरिजिनल. ओके, इट शुड बी नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज. ठीक है, यहाँ पर नॉट बोरोड का क्या मतलब है? इट मीन्स कि जैसे हमें पता है कि हमारी हिंदी भाषा के काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने संस्कृत से डिराइव किए हैं. ठीक है, इंग्लिश के शब्द जो है कहाँ से डिराइव किए हैं? आप जब भी कुछ स्टडी करते हैं, वी आइदर डिराइव इट फ्रॉम लैटिन और फ्रॉम ग्रीक. तो हम इंग्लिश को और हिंदी को दोनों को ही क्लासिकल लैंग्वेज नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, because they are not original, they have been borrowed from some other language. All right, and the third point is they should be different from the present form. What do they say? They should be different from the प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज द मॉडर्न फॉर्म. आपकी जो लैंग्वेज है, अब एक बार इमेजिन करिए कि पिछले 50 सालों में लैंग्वेज कितनी बदल चुकी है. राइट, हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें जब फ़ोन पर बात करते हुए सुनते हैं, देयर इज़ एन अम्यूजमेंट ऑन देयर फेस. ठीक है, कुछ उन्हें लगता है कि ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ें बोल रहे हैं. ASAP, BRB, आई विल टॉक टू यू टुमारो. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस हम लोग हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, एंड दे वंडर व्हाट आर दे स्पीकिंग. राइट, सो द फॉर्म्स हैव चेंज्ड ओनली विद इन 50 ईयर्स. तो आप इमेजिन करिए कि 1500 साल पुरानी अगर हमारी कोई लैंग्वेज है, तो उसमें और मॉडर्न में तो डिफरेंस होना ही चाहिए. और अगर डिफरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं मतलब है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत रीसेंट है. ठीक है, so these are the major criteria that we use to classify a language. Now what is this news about? The news says that कि सेंटर ये सोच रहे हैं कि हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो क्राइटेरिया है उसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं. ट्वीक से यहाँ पर जो वर्ड है ट्वीक, इससे उनका मतलब है कि हम थोड़ा सा इसे बदलते हैं डेफिनेशंस को. अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सोचने वाली बात ये है कि पिछले कई वर्षों से ये मुद्दा रेस किया जा रहा है कि एक लैंग्वेज है पाली. ठीक है, सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पाली लैंग्वेज. तो पाली लैंग्वेज के पास तो सभी जानते हैं कि लिटरेचर का बहुत अच्छा बैकअप है. मैन्युस्क्रिप्ट से काफ़ी सारी हमारे पास पाली में. ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे जो कहते हैं कि स्तंभ भी प्रेजेंट है जो पाली लैंग्वेज में हमें मिले हैं. So the question is why the status has not been given to this particular language. ठीक है, तो हमारी इन लैंग्वेजेस से पहले तो हमें समझना होगा कि संस्कृत को अगर स्टेटस मिल चुका है तो पाली लैंग्वेज तो कंसीडर की जाती है कि संस्कृत से भी पुरानी है. ठीक है, दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि मराठी लैंग्वेज को अभी अभी कंसीडर किया जा रहा है कि हाँ, इसे हो सकता है इस वर्ष ये स्टेटस मिल जाए. बट बिकॉज अभी अभी सेंटर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि मे बी देर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस इन द क्राइटेरिया. सो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस. अभी हम नहीं जानते कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वो तो हमें होने पर ही पता चलेगा. सो वी विल डिस्कस एंड कंटिन्यू दिस टॉपिक वेन एवर दिस चेंज हैपन्स. एंड इफ अ लैंग्वेज इज अपडेटेड, सी ये जो मैंने 6 लैंग्वेजेस कही है ये है एज ऑफ नाउ टुडे, एंड द डेट टुडे इज 10th जुलाई 2024. ठीक है, कल को कोई और लैंग्वेज एड ऑन हो जाती है
तो आप अपने जब नोट्स देख रहे होगे आप कहोगे कि नहीं मैम ने तो बस 6 ही बताई, गलत डेटा दे दिया हमें। पर आप समझिए कि डेटा चेंज होता रहता है एंड यू हैव टू कीप इट अपडेटेड। तो आप जब भी अपनी नोट्स बना रहे हैं इसके आगे लिख दीजिए कि इस डेट पर तो ये डेटा था, एंड ऑलवेज राइट द डेट विद अ पेंसिल, सो दैट अगर आपको आगे जाकर उसे अपडेट करना है then you can just erase it and keep the new data. Alright, moving on further. The next news is about diamonds and quantum. अब आप सोचिए डायमंड और क्वांटम का क्या रिलेशन है, ठीक है। डायमंड क्या है? इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कल हमने पढ़ा था एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्राफीन को, और आज हम देख रहे हैं डायमंड को। हम डायमंड के स्ट्रक्चर पे डिटेल में नहीं जा रहे, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअली में कैसे इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो कहा जाता है कि डायमंड इज नोन फॉर इट्स प्योरिटी, ठीक है, बहुत ही प्योर होता है। एंड इंडिया में जो है डायमंड्स को हम सिर्फ कट एंड पॉलिश करते हैं। सूरत इज़ द मेजर हब इन इंडिया जहाँ पर डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है। वी डू नॉट हैव डायमंड्स नेचुरली इन इंडिया, हमें इसे इम्पोर्ट करना होता है। बट वाई डू वी नीड डायमंड्स? फॉर वॉट रिसर्च डू वी नीड डायमंड्स? ओके, सो व्हेन वी स्टडी इन क्वांटम, ठीक है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल पे जाना होता है क्यूबिट्स को समझने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर पे। So, see, I am drawing this, not very good at it, but I am trying, ठीक है। Consider this is a diamond, ठीक है। तो इस डायमंड की प्योरिटी में कुछ ऐसे जगह होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम ऐसी कुछ जगह होती है जो मैंने डॉट से डिस्क्राइब की है। इन्हें हम कहते हैं इम्प्योरिटी। थ्रू आउट तो हम जानते हैं कि ये बना है कार्बन के मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, बट जो ये इम्प्योरिटीज है इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। ये इम्प्योरिटीज यूजुअली हम देख नहीं पाते, ठीक है, इवन अंडर द माइक्रोस्कोप इसे देखना काफ़ी मुश्किल होता है। सो समवेयर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कि दिस इम्प्योरिटी इज द स्पेस, इसमें जो एक होल जैसी चीज़ है डायमंड के अंदर, आई वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली अ होल, एक कैविटी या एक स्पेस है जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू नो द क्वांटम प्रॉपर्टीज कि क्यूबिट्स कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाई डू वी नीड टू नो दिस डेटा? ये हम क्यों चाहते हैं कि हमें समझ में आए? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द नेशनल क्वांटम मिशन। व्हाट इज नेशनल क्वांटम मिशन? इट वाज लॉन्च्ड ऑन 9th April, I think the date was, sorry, not 9th, it was 19th April 2023. And what was the target? That within 8 years they have to develop quantum computers, ठीक है। कैसे? इमीडिएट स्केल के, है ना, यानी कि बहुत ग्रैंड भी हम नहीं उम्मीद कर रहे, बट वी आर प्लानिंग कि इंटरमीडिएट स्केल के क्वांटम कंप्यूटर्स हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 50 to 1000 क्यूबिट्स के वर्किंग वाले, ऐसे हमें कंप्यूटर्स डेवलप करने हैं, ठीक है। ऑलराइट, बजट कितना था इसका? द बजट वाज अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़। ऑलराइट, नाउ व्हाई सच अ हाई बजट? आप टेक्नोलॉजी भी तो देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके रिसर्च में ही डायमंड्स यूज हो रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज द आउटपुट गोइंग टू बी। रिसर्च का बेसिक मटेरियल ही अगर डायमंड है, अगर आप उसके बेसिस पे रिसर्च कर रहे हो, देन द आउटपुट हैज टू बी ग्रैंड। व्हाई डू वी नीड क्वांटम कंप्यूटर्स? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, इट वॉज कैलकुलेटेड दैट एक पर्टिकुलर सम था, एक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इट कैन टेक अबाउट 1000 of years। कितना समय लेगा? 1000 of years, ओके। सो जस्ट इमेजिन
कि अगर हमारा क्वांटम कंप्यूटर पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो इस वर्क को विद इन सेकेंड्स फिनिश कर सकता है. So imagine some seconds and thousands of years. So that is why we need the quantum computer. Now they have planned in the quantum mission, what they have planned to develop 4 thematic hubs. ठीक है, thematic hubs का मतलब है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाया जाएगा पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स में, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स में इन प्रोग्राम्स को रन किया जाएगा और एक पर्टिकुलर टारगेट को लेकर वो लोग अपनी रिसर्च करेंगे. ठीक है, तो ये क्या टारगेट्स है? फर्स्ट वन इज क्वांटम कंप्यूटिंग, देन कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, मटेरियल एंड डिवाइसेस. तो आप समझिए, अगर हमारे पास डिवाइस होगा, पहले हम क्वांटम डिवाइस बनाएंगे तभी तो वो डिवाइस कंप्यूटिंग करेगा. ठीक है, वो कंप्यूटिंग करेगा तब वो सेंसिंग और मॉनिटरिंग कर सकेगा, मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग. ठीक है, कम्युनिकेशन भी तो तभी पॉसिबल हो पाएगा. So we first need the quantum infrastructure to develop, and once it is done, we can say that we have achieved something in the field of quantum technology. All right. Moving on further, the next news is about electric vehicle, and it is explaining what is regenerative braking. बहुत ही शॉर्ट में मैं इसे कवर करूँगी. ठीक है, जितना कंसेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली समझिए कि ये एक टावर है, इसके ऊपर एक है बॉल. ठीक है, टावर पर क्या है? बॉल. इस बॉल में होती है पोटेंशियल एनर्जी. जब ये नीचे गिरता है तब इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी. जब ये रेस्ट पे है, वापस से ये रेस्ट की कंडीशन में आ गया, तो इसमें है फिर से पोटेंशियल एनर्जी. We know the law of conservation of energy. What does it say? It says that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. Right? इतना कहा है law of energy ने. ठीक है, law of conservation of energy ने. So what we are saying कि जब ये constant motion में है तब इसमें क्या होगी? Kinetic energy होगी, है ना. अब ये पोटेंशियल से जब मूवमेंट में आया तो काइनेटिक एनर्जी प्लस सम हीट विल बी रिलीज्ड. व्हाट विल बी रिलीज्ड? हीट. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस हीट. कैसे, वो हम देखते हैं. बेसिक प्रिंसिपल है, इसे भी हम लोग 8th 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, आप जानते हैं इसे पहले से. ये है एक व्हील, आपकी कार का व्हील है. जब ये रोटेट करेगा, ऐसे कार चलेगी, व्हील रोटेट होगा, आगे जाएगा, तो क्या डेवलप हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी. इस काइनेटिक एनर्जी से ही तो ये मूव हो रहा है व्हील. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के साथ में थोड़ी बहुत हीट भी रिलीज होगी. एम आई राइट? हीट विल बी रिलीज. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू स्टोर दिस एनर्जी एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट. ठीक है, तो हम इसे हीट एनर्जी को पहले कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टोर इट इन अ वे. इट इज वर्किंग एज अ जनरेटर. ठीक है, एक जनरेटर की तरीके से ये काम करेगा और फिर इसी एनर्जी को हम यूज कर लेंगे. ठीक है, तो ये ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है कि जब ब्रेक्स लगेगी तब हीट रिलीज होगी, उस हीट को हम कन्वर्ट करके स्टोर करेंगे और उसी से हमारी कार के कुछ फंक्शंस रन कर सकते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द एनर्जी दैट हैज बीन डिसिपेटेड. ओके, दिस इज ऑल इट वाज अबाउट. नेक्स्ट द टॉपिक इज अबाउट सेबी. ठीक है, सेबी ने रिसेंटली कहा है कि 1 अक्टूबर 2024 से कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रक्चर लगाया जाएगा. तो समझते हैं थोड़ा कि ये क्या है. ओके, सेबी होता है एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी राइट. उसके अंदर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स रजिस्टर करते हैं. ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स का क्या काम है कि वो ब्रोकरेज करते हैं. ठीक है,
वो किससे करते हैं? उनके अंडर, स्टॉक ब्रोकर्स के अंडर कुछ कस्टमर्स होते हैं मेरे आपके जैसे, हम सब लोग ट्रेडिंग जो भी करता है स्टॉक मार्केट में, उन्हें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, वी कॉल इट अ डीमैट अकाउंट, तभी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेबी सेइंग कि एक्चुअली में जो चार्जेस कलेक्ट होते हैं, सेबी इन स्टॉक ब्रोकर्स से कुछ चार्ज लेता है रजिस्टर करने पे। मंथली दे हैव टू पे समथिंग टू सेबी। सो सेबी इज सेइंग दैट मंथली जो आप पेमेंट कर रहे हो वो वॉल्यूम बेसिस पे है, ठीक है, कि आपने कितने शेयर्स सेल किए हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो जितने ज़्यादा किसी कंपनी ने शेयर सेल किए उतना कम अमाउंट उन्हें सेबी को देना पड़ता है। क्या कहा मैंने? जितनी ज़्यादा उनकी सेल्स है उतने कम अमाउंट उसे सेबी को देनी पड़ रही है, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स को। बट जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो कंज्यूमर से, यानी कि हम जो लोग हैं हमसे डेली बेसिस पर कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है, ठीक है। कैसे कलेक्ट करता है? डेली बेसिस पे कलेक्ट करता है। जब भी हम कोई शेयर की ट्रेडिंग करते हैं कुछ बहुत छोटा सा अमाउंट उस ट्रेडिंग का डिडक्ट होता है और किसके पास जाता है? स्टॉक ब्रोकर के पास जाता है। तो सेबी ये कह रहा है कि आप हमें तो मंथली बेसिस पे दे रहे हो बट आपको मिल रहा है डेली बेसिस पर। तो इस वजह से दोनों में कुछ एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो सेबी ये चाहता है कि कंज्यूमर पे ज़्यादा लोड ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा है जो अमाउंट स्टॉक ब्रोकर्स हमें दे रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट वो कंज्यूमर से नहीं ले सकते एज अ फी, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग, उससे ज़्यादा अमाउंट उन्हें एज अ फी नहीं लेना चाहिए अपने कंज्यूमर्स से। जो निखिल कामत है, ठीक है, ज़ीरोधा के जो सीईओ है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में एक रीसेंट इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उनके प्रॉफिट का 10%, ठीक है, प्रॉफिट का कितना 10% जो हिस्सा है वो कहाँ से आ रहा है? इन डिफरेंस से ही आ रहा है। तो अब सेबी ने कहा है कि हम यूनिफॉर्म चार्जेस लगाएंगे। तो जो पहले स्ट्रक्चर था कि आप इस स्लैब में है तो इतना आपको देना है, इस स्लैब में है इतना देना है, इसमें है इतना देना है, तो अब वो चीज़ हट जाएगी और एक यूनिफॉर्म अमाउंट होगा जो आपको पे करना होगा, ठीक है। Moving on further, the next thing, this is not directly a news, बट इसको कैसे पूछा जा सकता है? कई बार आता है ना कि क्या प्रॉब्लम किसी कंट्री में चल रही है, इस टाइप की भी कुछ मैच द फॉलोइंग्स होते हैं। कंट्री नेम्स आर मेंशन एंड द इशू इज मेंशन। जैसे पूछा गया था अर्जेंटीना में क्या था, क्राइसिस चल रहा था, मॉनेटरी क्राइसिस, या फिर कहीं पर कूप्स चल रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो केन्या में और तो कुछ ज़्यादा था नहीं, बस इतना था कि केन्या में अभी अभी इन्हें पर्टिकुलर इस लीडर को, ये जो एक लीडर है डोम्सडे कल्ट का, इन्हें सज़ा सुनाई गई है और टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं बिकॉज इन्होंने क्या किया? इन्होंने मास किलिंग्स को प्रमोट किया। कैसे? इनडायरेक्ट वे में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इनके 400 फॉलोअर्स को मोटिवेट किया कि आप स्टारवेशन को अपनाइए, आप अगर स्टार्व करेंगे, आप अगर भूखे रहेंगे तो जीसस आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। इस तरीके से मोटिवेट करके इन्होंने क्या किया? मास किलिंग्स को प्रमोट किया है। इनके 400 फॉलोअर्स की जो है इस वजह से डेथ हो चुकी है, स्टारवेशन की वजह से। ऑलराइट, इतना ब्रीफ में था, ये सिर्फ एक नज़र आपको ऐसी न्यूज़ को देनी होती है। सो दिस इज अबाउट मास किलिंग्स। द नेक्स्ट थिंग इज जापान एंड फिलीपींस के बीच में क्या साइन हुआ है? डिफेंस एग्रीमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग step and I think this is kind of going to change the game that is going on in the South China Sea. साउथ चाइना सी को कभी आप स्टडी करोगे तो आपको लगेगा इट्स काइंड ऑफ अ सर्कस रनिंग ऑन राइट नाउ, बिकॉज जितनी भी आइलैंड्स है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द साउथ चाइना सी एरिया। यहाँ जितने भी आइलैंड्स है इनमें कहीं ना कहीं पे कंट्रीज के बीच में लड़ाई कर चल रही है कि ये आइलैंड मेरा है, दूसरी कंट्री बोल रही है ये मेरा है। सो एवरीवन इज मेकिंग क्लेम, ठीक है। एक पर्टिकुलर आइलैंड पे 3 कंट्रीज क्लेम लगा रही हैं।
सो नोबडी नोज एक्चुअली में कि हाँ कौन सा किसका बिलोंग कर रहा है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ रक्कस क्रिएटेड. नाउ हमें इसमें से क्या सीखना है, क्या समझना है. तो सबसे पहले तो ये आईआर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अब अगर जापानीज फोर्स जो है, ठीक है, जापानीज फोर्स अगर अपनी नेवल फोर्सेस को यहाँ फिलीपींस के एरिया में डिप्लॉय कर रही है, ठीक है, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हुआ है कि वो चाइना को बता रही है कि हम वहाँ खड़े हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए. ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक ऑन चाइना दैट वी आर प्रेजेंट. ठीक है, चाइना भी क्या कर रहा है, वो भी यही काम कर रहा है कि हर जगह अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रहा है दैट आई एम प्रेजेंट हियर. वो कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, एग्रीमेंट साइन कर रहा है और अपनी प्रेजेंस बता रहा है उसके पास में. सो जापान इज डन अ सिमिलर थिंग एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिलीपींस का जो क्लेम है वो यहाँ पर है सेकेंड थॉमस शोल पे. ये एक स्प्रैटली आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर फिलीपींस करता है अपना क्लेम. बट एज वी नो कि चाइना तो ऑलमोस्ट हर जगह पहुँच जाता है एंड इट क्लेम्स कि ये भी हमारी ही जगह है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट अस सी व्हाट्स हैपनिंग इन द अपकमिंग डेज. आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है, आईआर पर्सपेक्टिव से तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करोगे, बट अदर देन दैट मैपिंग के पर्सपेक्टिव से आपको जो ये सीक्वेंस है उसे भी आपको समझना होगा कि जैसे स्कारबोरो शोल यहाँ पर है, ठीक है, पैरासेल आइलैंड्स ये रहे, ऑलराइट. देन वी हैव दिस स्प्रैटली आइलैंड्स हियर एंड इन दिस स्प्रैटली आइलैंड्स ग्रुप वी हैव दिस सेकेंड थॉमस शोल. ठीक है, इसी तरीके से जो छोटे छोटे आइलैंड्स है आपको उसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं या आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन किस आइलैंड को क्लेम कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी इन दिस न्यूज़. So we end our class here today. The session was very brief. Tomorrow we will come with something interesting as the Rajasthan budget is getting discussed right now. So कल हम अलग न्यूज़ के साथ आते हैं. Let's meet tomorrow. Thank you.